Hello students, welcome back. Today we are doing the fourth part of our chapter organizing. We are now revising different forms of business organizations structure. So as you know, different organization structure क्या है, आपका chain of command है, आपका scalar chain follow करता है, क्या बता रहा है, आपका authority and responsibility relation declare करता है. That is called to be your ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपके बहुत कॉमन स्ट्रक्चर्स कौन से हैं आपके? लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट, और आपका डिविजनल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो हम करेंगे अब आज लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर, एंड द लास्ट पार्ट विल बी योर डिविजनल स्ट्रक्चर. सो first of all, we'll revise again what is organization structure. A system of authority, responsibility and relationships between various positions within which managerial and operating tasks are performed. It specifies the relationship between people, work and resources. It clarifies who reports to whom. It facilitates the flow of work and communication. So organization structure is generally like a pyramid with a narrow top and broad bottom. नीचे से आपका नीचे से शुरू होता है, नीचे आपका ब्रॉड होता है और ऊपर की तरफ आते आते वो घटता जाता है, नैरो होता जाता है. So common organization structure, as I've told you, line organization, line and staff organization, functional organization and divisional organization. Now what is line organization? line organization क्या कहा हमने? line organization वो है आपका जहां डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड है, अथॉरिटी टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करती है और आपकी एक स्केलर चेन फॉलो होती है आपकी ऑर्डर्स और कम्युनिकेशन फ्लो करने के लिए. सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड through which authority flows from top to bottom. There is a straight unbroken line, that is scalar chain, and all orders and communication flow down the line. Line organization is characterized by direct lines of authority flowing from top to bottom of the organizational hierarchy and lines of responsibility flowing in an opposite but equally direct manner. Line organization is also known as scalar or hierarchical organization due to a series of uninterrupted vertical relationships which connect the position and task of each level with those above and below it. ठीक है, तो आपका पोजीशंस को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? ऊपर नीचे जो भी लोग हैं उनके वो एक स्केलर चेन से या हिराकी से आपके बंधे में हैं. Every superior has complete command over his subordinate and every subordinate, right, is directly accountable to only one superior immediately above him. There is therefore unity of command. Unity of command means there is one subordinate, right? Every subordinate complete command over subordinates and subordinates have to report directly to one superior only. All persons on the same level of authority are independent of one another. So there are two types of line organization, pure line organization and departmental line organization. Pure line organization क्या है? In this type of organization, activities at a particular level are similar. Activities जो एक आपके लेवल पे वो सेम होती हैं. Every employee performs by large same type of work. जो हर एम्प्लॉई है आपका एक ही तरह का काम करता है. द डिवीजन एग्जिस्ट सोनली फॉर कन्वीनियंस ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल. जनरल डिवीजन इसलिए किया जाता है ताकि सुपरविजन एंड कंट्रोल आसानी से हो सके. देन जैसे आपका सीईओ है, अथॉरिटी नीचे जाती है प्रोडक्शन मैनेजर को आपकी, और प्रोडक्शन मैनेजर को जो है आपका फोरमैन को कंट्रोल करता है, और फोरमैन जो है वर्कर्स को देखते हैं, और एवरी वर्कर्स जनरली परफॉर्मिंग बाय एंड लार्ज सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी. देन डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और हर डिपार्टमेंट एक जैसे ही जो पर एक सिमिलर लेवल के वर्कर्स, राइट, आपका सेम टाइप का काम करते हैं. द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स. ईच सुपरवाइजर एंड वर्कर्स अंडर हिम परफॉर्म सिमिलर वर्क but their work differs from that performed in other departments. This makes for unity of control and differentiation of work. In such organizations, interdepartmental relationships should be clearly defined to facilitate coordination and control. जैसे हम देखें यहाँ पर आपका एक हमने फ्लो चार्ट बनाया है आपका डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन का. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके जनरल मैनेजर को
आपका अथॉरिटी पास करता है जनरल मैनेजर से। नीचे आपके डिपार्टमेंट्स हैं आपके, जिसमें डिपार्टमेंट मैनेजर ए, डिपार्टमेंट मैनेजर बी एंड डिपार्टमेंट मैनेजर सी है। डिपार्टमेंट मैनेजर ए he is heading production department, department manager B heading marketing department, and department manager C heading finance department. So प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे सुपरवाइजर है और उसके नीचे एम्प्लॉयज हैं जो कि क्या काम कर रहे होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज एक जैसा काम कर रहे हैं, यानी कि दे आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर है सुपरवाइज कर रहा है एम्प्लॉयज को, और एन एम्प्लॉयज अंडर हिम वर्किंग इन द सेम टाइप ऑफ वर्क, that is they are involved in the marketing of the product. And the finance department supervisor just supervising the employees, and they are doing the same type of work, they are just involved in all financial activities. Now merit क्या है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के? सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंपलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। इट इज इजी टू एस्टेब्लिश एंड सिंपली ऑपरेट ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इजी। क्विक डिसीजंस, क्योंकि किसी और से डिसीजन नहीं लेना है। आप एग्जीक्यूटिव के पास फुल अथॉरिटी होती है एक जॉब के लिए, तो किसी स्टाफ से उनको कोई परमिशन नहीं लेनी, कोई डिसीजन डिस्कशन नहीं करना है, तो ही इज ओनली टू टेक द डिसीजंस। तो डिसीजंस आसानी से हो जाते हैं और क्विकली होते हैं। As each executive has full authority for a job, required decisions can be made easily and quickly. Necessary instructions can be quickly transmitted due to direct, simple lines of communication. Then third is unified control. Line organization facilitated unified supervision and control, क्योंकि each subordinate reports to one superior and superior has direct and close contact with his subordinate. तो unified control रहा आपका, क्योंकि एक पर्सन को मल्टीपल ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, उसको मल्टीपल लोगों को जो है अकाउंटेबल नहीं होना पड़ रहा है, तो दैट मेक्स कंट्रोल यूनिफाइड। डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिफाइड कंट्रोल जो है डिसिप्लिन बना देता है, और देयर इज नो डिवीजन ऑफ लॉयल्टी एंड नो डेंजर ऑफ कंफ्लिक्टिंग ऑर्डर्स। देन इकोनॉमी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें कोई स्टाफ स्पेशलिस्ट को अपॉइंट नहीं करना पड़ता। जनरली देयर अपॉइंटमेंट्स और देयर सैलरीज आर वेरी वेरी हाई। कोऑर्डिनेशन, एज ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वन डिपार्टमेंट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वन पर्सन, कोऑर्डिनेशन बिकम्स ईजियर। तो एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज एक हेड के अंडर होती हैं, कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है। डिमेरिट्स और ड्रॉबैक्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज ओवरबर्डनिंग। एक ही ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूटिव को है, बर्डन होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना है, उसकी कैपेबिलिटीज कम होती हैं पर उसको सारे काम करने होते हैं, तो सिंगल एग्जीक्यूटिव कैन नॉट मीट द डाइवर्सिफाइड एंड वेरिड डिमांड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स as his ability is limited and no staff support is available to him, so he'll get overburdened. Lack of specialization, a particular manager has to perform all types of activities concerning his department. सारी तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं एक पर्टिकुलर मैनेजर को, therefore there is absence of expert advice in the line organizations. Lack of specialization reduces the efficiency of management, right, and effectiveness of management. Then autocratic leadership can, as one executive controls all the activities of a department, there is a danger of authoritarian rule. एक ही पर्सन सभी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर रहा है, तो अथॉरिटेटिव रूल होने का जो है बहुत खतरा रहता है। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप रिड्यूसेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड मोरल एट लोअर लेवल्स। तो क्या होता है, वो सारा काम खुद करना चाहते हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन है अथॉरिटी और पावर एक जो है टॉप के पास ही रहता है, जिससे कि लोअर लेवल पे जो इनिशिएटिव और मोरल का जो है स्कोप कम हो जाता है, और नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म आर लाइकली टू ग्रो। डिफिकल्टी इन स्टाफिंग, it is difficult to recruit and train executives who can perform the diverse functions of a department. रिक्रूटमेंट क्यों मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमें आपको ऐसा रिक्रूट करना है एग्जीक्यूटिव जो कि सारे के सारे डिफरेंट डाइवर्स टाइप के फंक्शंस के डिपार्टमेंट के एक ही पर्सन परफॉर्म कर सके, सो दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द स्टाफिंग। फिफ्थ इज इंस्टेबिलिटी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है क्योंकि द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन अ फ्यू की एग्जीक्यूटिव्स।
and there is little scope for expansion of business beyond their capabilities, क्योंकि उनकी capabilities limited होती हैं, तो उनकी capabilities के against और उनकी capabilities के beyond expansion नहीं किया जा सकता, तो expansion का जो है आपका scope कम होता है और instability है. Organization is stable for the small enterprises. In such enterprises, work is largely of routine nature, like little skill and simple method of operations are used. जहाँ स्किल कम चाहिए और सिंपल मेथड्स हो रहे हैं ऑपरेशंस के आपके, एंड इट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ फर्म्स एम्प्लॉइंग ऑटोमेटिक मशीनरीज एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस ऑफ मॉडेस्ट साइज. ओके, लार्ज साइज में नहीं पॉसिबल. नाउ व्हाट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. लाइन क्या हुआ हमारा? लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो कि आपका एक डायरेक्ट कंट्रोल आपका है, जहाँ पे कंट्रोल कंसंट्रेशन है, जहाँ पे मेजर काम क्या करना है आपका, अथॉरिटी ऑफ कमांड आपका जो है आपका एक स्पेसिफाई है, चेन आपका स्केलर चेन आपका यूज होता है. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ कॉम्बिनेशन, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, लाइन का और स्टाफ का. ठीक है, line and staff organization is a combination of line structure which concentrate control too much and the functional structure which divides control too much. It is an attempt to combine the advantage of specialization and unity of command. दोनों चीजें इसमें combine करने की कोशिश की है, unity of command plus specialization. The line position serves to maintain unity of command with the staff wing. तो staff and line दोनों का आपको जो है combine कर रहे हैं, provide expert advice and counsel for efficient management. The need for a staff position arises when the work of an executive increases and its efficiency performance requires expert guidance which he himself cannot provide due to limited capabilities. So line and staff organization आप देखिए चार्ट में, आपको जो dark lines हैं वो आपका जो है they are showing the line and the broken lines they are representing the staff. तो स्टाफ क्या हो गया? दे आर स्पेशलिस्ट इन देयर पर्टिकुलर एरिया, जैसे इकोनॉमिस्ट है, लीगल एडवाइजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है. दे आर द स्टाफ, अपने एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं. और लाइन स्ट्रक्चर में आपका है चीफ एग्जीक्यूटिव which gives order to the production, finance and marketing manager, and these marketing managers further giving instructions to their lower supervisors and then to their supervisors giving instructions or controlling and commanding their employees or workers, right? So merits of line and staff organization, it's the plant specialization. The line staff organization provides the benefit of plant specialization. There is division of mental work and practical work. mental work कौन कर रहा है आपका? staff organization. और practical work कौन करता है आपका? line organization. Balanced decision, staff specialists provide adequate information and expert advice at the right time so that line executives can take better decisions. Discipline, unity of command is maintained. Staff cannot issue instructions to subordinates in line departments. Staff instructions नहीं दे सकता, सिर्फ line ही आपका जो है, line जो आपका executives they are giving command, they are giving instructions. There is a direct chain of command which facilitates discipline and control. Undivided responsibility, each line officer is fully responsible for the result of his department. There is scalar, there is a clear flow of authority to those responsible for operations. Then flexibility, there is a greater scope for growth and expansion. General and specialized staff can be employed at various levels to help managers cope with additional work. New activities can be added without disturbing the basic structure. तो आपका जो है जनरल हो गया आपका लाइन, एंड स्पेशलाइज स्टाफ जो है हर लेवल पर आपके होते हैं जो कि एडिशनल वर्क को अच्छे से कोप अप कर सकते हैं. तो नई एक्टिविटीज जब ऐड करनी होती हैं बिना बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए नई एक्टिविटीज को एडअप किया जा सकता है. नाउ डिमेरिट्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ? क्योंकि दो आपके यहाँ पर एक लाइन स्टाफ है, लाइन एग्जीक्यूटिव है और स्टाफ स्पेशलिस्ट है, तो देयर creates a conflict between them. There is a danger that staff may
एनक्रोच अपॉन लाइन अथॉरिटी। तो वो क्या है, आपका स्टाफ जो है लाइन अथॉरिटीज के बीच में आपका एनक्रोचमेंट कर सकता है। एनी लाइन एंड लाइन में इग्नोर स्टाफ एडवाइजेस, और लाइन भी स्टाफ के एडवाइस को इग्नोर कर सकती है। सो यहाँ जेलसी एंड फ्रिक्शन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ रिड्यूसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज। तो जेलसी और फ्रिक्शन जो है लाइन और स्टाफ के बीच में, वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है, राइट, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इन प्रैक्टिस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ क्लियर कट एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन एन लाइन एंड स्टाफ। तो बहुत मुश्किल प्रैक्टिकली नहीं है कि कैसे उनको बिल्कुल क्लियर कट कर दिया जाए, डिवाइड उनके ड्यूटीज को। लैक ऑफ वेल डिफाइंड अथॉरिटी रिजल्ट्स इन कंफ्यूजन और देन अल्टीमेटली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। Ineffective staffmen may not perform their jobs well because they are not accountable for the result. स्टाफ कई बार अपना परफॉर्म नहीं करता जॉब अच्छे से, क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं होता, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है आपके लाइन के जो लाइन हेड्स हैं, लाइन एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके ऊपर होती है। तो स्टाफ में बी इनइफेक्टिव बिकॉज इट लैक्स अथॉरिटी टू गेट इट्स एडवाइस इम्प्लीमेंटेड। और लाइन भी, स्टाफ भी इनफेक्टिव हो जाता है क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं होते अपने एडवाइजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दोनों तरह से इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। देन एक्सपेंसिव, लाइन एंड स्टाफ दोनों को ही एम्प्लॉय करना पड़ता है, तो दोनों स्टाफ को एम्प्लॉय करना एक्सपेंसिव हो जाता है। दो सेपरेट सेट ऑफ पर्सनल्स आर रिक्वायर्ड, सो इट बिकम्स एन एक्सपेंसिव type of organization structure. Lack of creativity, line managers may depend too much on staff for advice and guidance, so this dampens original thoughts. तो उनकी अपनी कोई ओरिजिनल थॉट्स, अपनी जजमेंट्स नहीं बनती हैं, वो कुछ इनिशिएटिव नहीं लेते हैं वो लाइन एग्जीक्यूटिव्स अपने आप, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन स्टाफ फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइजेज, एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस। द एक्टिविटीज अब हम करेंगे आपका फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं, या तो ग्रुपिंग कैसे बेसिस पे हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस, कि क्या क्या फंक्शन क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं आपके। जैसे आपके कपड़े के लिए जब क्लॉथ मटेरियल बनता है तो उसमें एक आता है आपका वीविंग डिपार्टमेंट हो गया, एक डाइंग डिपार्टमेंट हो गया, राइट, और एक आपका जो है निटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है अगर रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हैं तो आपके। ऐसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ड होता है आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। दैट इज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के क्या क्या प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग सर्विसेज आपका दे रहा है अगर तो कोई डिवीजन, तो उसे क्या कहेंगे हम, डिविजनल स्ट्रक्चर। जहाँ फंक्शन अलग अलग हो रहे हैं तो उसे कहेंगे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर कैसा हुआ, जैसे कि अगर कोई एक आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक आपका कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, एक आपका ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट है, राइट, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, सो इट इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, सो इट इज called to be divisional departments. So now what is functional structure? Under functional structure each major basic function is organized as a separate department. तो हर एक फंक्शन के बेसिस पे हम डिपार्टमेंट बना रहे हैं, जैसे आपका सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। बेसिक और ऑर्गेनिक functions are the functions the performance of which is vital and essential to the survival of the organization. For example, production, sales, finance and personnel are basic functions in the manufacturing enterprises. और अगर हम रिटेल बिजनेस की बात करते हैं, buying, selling and finance major functions हो गए. If necessary, a major function may be divided into sub functions. For instance, activity of the production department can further be classified into quality control, processing of material and रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। जनरली फंक्शनल डिपार्टमेंट है हमारा हर तरह के फॉर्म्स के लिए सुटेबल होता है, कोई भी फॉर्म फंक्शनल जो स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकती है। नाउ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, हमारा प्रेसिडेंट है, फिर रिसर्च डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिवीजन, प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होगा, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फाइनेंस में अकाउंटिंग, परचेजिंग एंड फाइनेंस, देन मार्केटिंग में सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज, एंड डिवीजन प्रोडक्ट्स में आपका लाइन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन टीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरिट क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर के, इट इज द मोस्ट लॉजिकल, टाइम प्रूवन एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ द
Organization structure increases management efficiency. It makes recruitment and training easier because managers have to be expert only in a narrow range of skills. तो अब मैनेजमेंट एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, क्योंकि उन्हें आपको एक किसी पर्टिकुलर स्किल में ही एक्सपर्ट होना होता है. सो एक्सपर्ट मैनेजर्स ही आपके हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. कोऑर्डिनेशन इजी है. Coordination and control within the department is very easy because departmental staff understands the work involved. उन्हें मालूम है कि क्या वर्क कर रहे हैं वो. कंट्रोल, इट परमिट्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर परफॉर्मेंस. तो आपका परफॉर्मेंस पे इफेक्टिव कंट्रोल होता है. इकोनॉमिक, कॉस्टली डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, तो ये इकोनॉमिक भी है आपका. स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इसमें हो सकता है, विच मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड प्रमोट एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस. फैसिलिटेट सुपरविजन, ये जो है आपका सुपरविजन भी ईजियर कर देता है because an individual manager becomes familiar with related tasks, activities and delegation of authority. तो वो क्योंकि बार बार वही काम कर रहे हैं, तो अपने जो टास्क हैं, उनकी एक्टिविटीज हैं या जो अथॉरिटी डेलीगेशन करना है, उसके थ्रू वो अपने काम को ईजियर और सुपरविजन को इफेक्टिव बना लेते हैं. Now, what are the demerits of functional structure? फंक्शनल स्ट्रक्चर के डिमेरिट्स क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, specialists working in different departments may not be able to see the perspective of the organization as a whole. तो क्या देख रहा है? हर एक स्पेशलिस्ट जो अपने डिपार्टमेंट को ही देख रहा है, उसको ही ओवरलुक कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में लगा हुआ है. कई बार वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव को भूल जाते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या लुक है, क्या आउटलुक है, क्या वो व्हाट इज देयर नीड, and may work for their sole benefit irrespective of the organizational goals. So it may hamper the organization's goals achievements. Responsibility, it becomes difficult to hold a particular department responsible for any problem. तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जो है किस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी कम रही जिससे कि ओवरऑल गोल्स नहीं मिल सके, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, क्योंकि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इनफ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शनल हेड्स डू नॉट ऑब्टेन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन. फंक्शनल जो हेड्स हैं उनके पास टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए आपका जो है एक्सपीरियंस नहीं होता है. स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नैरो आउटलुक में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी. तो उनका स्पेशलाइज स्किल और उनका आउटलुक नैरो होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इनफ्लेक्सिबल बन जाता है. नाउ फोर्थ इज डिले इन डिसीजन मेकिंग. ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स ऑल्सो बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि डिसीजन मेकिंग आपकी स्लो हो जाती है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स को देख के सभी डिपार्टमेंट्स हेड के साथ बैठ के डिसीजन लेना होता है. तो एक पर्सन को डिसीजन नहीं लेना है ताकि वो क्विकली ले ले, बहुत सबसे कंसल्ट करके डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो और डिलेड हो जाती है एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिकम डिफिकल्ट. Conflicts, managers may try to build up their own functional empire leading to interdepartmental rivalry and conflicts. हर मैनेजर अपना ओन फंक्शनल एम्पायर बनाना चाहता है कि उनका डिपार्टमेंट का जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या उसको ही हेड बनाया जाए. सो इसे क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल राइवरी और कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और ओवरऑल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस और ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है. सो नाउ आई एम एंडिंग अप the revision of this chapter till now. The rest we will do in the next part. Thank you for today, and the same thing I want to repeat: like, share and subscribe the video. Goodbye students, all the best for your exams and for your revisions.